हमें पसंद नहीं होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। आपका कुलगाम जो है जब आने that we recognize the significance of water conservation. To preserve this precious resource, Government of India has launched a campaign, Jal Shakti Yojana, in the year 2019 for water conservation and water scarcity in pollution, resultant discharge of agriculture, industrial and mining wastage. Water pollution leads to the destruction of aquatic life, and it also eventually leads to the balance of life. Water pollution leads to the spread of some diseases like tuberculosis, like cholera, and in human beings. It kills more than 5 lakh people per year in a world. There are some sources of water pollution like agriculture pollution, like radioactive substances, like river dumping, like marine dumping. And there are some 4 main types of water pollution. Number 1, chemical pollution, biological pollution, physical pollution, and radioactive. Access to clean and safe drinking water. As responsible global citizen, we must strive to address these disparities and towards ensuring equitable access to water for all. Water is not just a commodity. It is a fundamental right and a shared responsibility by valuing and conserving. It is rightly said that water is life. So the authorities that have also perfectly given the name as Jal Jeevan Mission. If we talk about this mission and achievements right from its conception in August 2019, we fell short of time. In fact, the mission has surpassed all the imaginations, and there is ample target time left to achieve more. I will give little bit glimpses of this mission and its achievements. The mission was launched in August 2019. Or prescribed in quantity, on regular basis and a long-term basis, at affordable services, delivery chains, leading to improvement in living standard of rural communities. Mission. Jal Jeevan Mission is to assist, empower and facilitate states' duties in planning of participatory rural water supply to GP buildings, schools, Anganwadi centers, health centers, wellness centers, etc. Guest to take his seat on the other side of the room. हमारे दूसरे The clouds is performed by trees. Above forests, the air is cooler, and that performs the condensation of water vapors, and which results into rain and snow. So you have to be cautious that we have not to think about this water only in terms of rivers or other things, sources, resources, etc. But you have to see all around what are the factors which are responsible for this water, flow of water or presence of water on earth. So at last you heard a lot about the contaminants representing 100 families. ठीक है ना? तो 100 फैमिलीज में ये मैसेज आएगी कि जल जीवन मिशन का मेन मॉड्यूल क्या है। जैसे अभी ये छोटी बच्ची बता रही थी कि जो पहला मकसद हमारा है कि 2024 तक वी हैव टू एंश्योर दैट एवरी हाउसहोल्ड रूरल हाउसहोल्ड विल गेट अ टैप कनेक्शन। ठीक, ये हमारा पहला मकसद है इसमें। दूसरा जो इसने बोला है 55 लीटर से एलपीजी दिया पर पर्सन को 55 लीटर चाहिए। आप यहाँ मंजगांव में रहते हो तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है वाटर के, ठीक है ना? तो आप लोगों को लगता होगा कि नहीं ये क्या बोल रहे हैं 55 लीटर्स, ये तो बहुत कम है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा इस मंजगांव में, आगे वाली जो जनरेशन आने वाली है इतना भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? 55 लीटर्स भी नहीं होंगे हमारे पास। तो वी हैव टू बी सस्टेनेबल, वी हैव टू बी सस्टेनेबल। पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का सही इस्तेमाल ये है कि नल को खुला नहीं छोड़ेंगे आप। घर में आप जितनी पानी जरूरत लगे उतना ही आप इस्तेमाल करें। आप नल को खुला नहीं रखेंगे। आप साफ पानी को
पीने के लिए इस्तेमाल करे और जिससे कमतर जो पानी है वो दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करे, ताकि आपकी सेहत पे भी मतलब उसका बुरा असर ना पड़े, और बाकी लोग जो प्यासे हैं जिनको साफ पानी नहीं मिल रहा है, जो इसके मतलब जिनको पानी है उनको ये मिलना चाहिए। अगर वो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे तो मैं कहता हूँ तब ये मिशन का भी आप मैं कहता हूँ आज फाउंडेशन की जानिब से हमारे यहाँ जो मेहमान आए थे उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं फर्दन तमाम असातिज़ा किराम का भी मशकूर और ममनून हूँ जो हमारे क्लस्टर के डिफरेंट स्कूलों से यहाँ तशरीफ लाए, और साथ ही साथ मैं उन तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चों का भी तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। मैंने देखा कि कुछ बच्चियाँ जो है वो 6th क्लास नरेंद्र मोदी ने किया था 15 अगस्त 2019 में, और ये मिशन 2024 तक उनको कंप्लीट करना है। हालांकि जो ये आराम फाउंडेशन है, अब्दुल रहमान आज़ाद फाउंडेशन है, हमको कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 41 गांव मिले हैं जिनमें हमें जाना है, और जल जीवन मिशन के मतलब हमें जानकारी लोगों को देना है, ताकि इस मिशन के तहत जो भी काम होगा वो सब तक पहुँचे। अगर इस इलाके में कोई भी अभी घर रह गया हो जिसके पास अभी टैप वाटर नहीं पहुंचा हो, उनको टैप वाटर पहुंचाना है। गांव में जो जोमा है, जिम्मेदार अफराद होते हैं, सरपंच होते हैं या पंच होते हैं, उनके वसादत से सरकार तक ये बात पहुंच जाएगी, ताकि उन सबको ये फायदा पहुंचे। इस और मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम डिबेट्स करें, हम सेमिनार्स करें, हम लोगों को अवेयर करें, इतना ही तक ये महदूद नहीं है। ये मिशन एक मिशन है जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने 2019 में 15 अगस्त को ऐलान किया कि 2024 के आखिर तक पूरे मुल्क में हर घर जल नल के जरिए पहुंचाया जाएगा, यानी साफ पानी साफ आब घर वन मकसद युतुई वक्त कम मुख्तसर वक्त। हम अक्सर ये कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान जो तबका है समाज में, सोसाइटी में, वो सिर्फ ये कहता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन करता कोई नहीं। ये बात ऐसी है, एक कान से हम सुनते हैं और दूसरे कान से हम छोड़ते हैं। एज ए जर्नलिस्ट मैं हालत देखता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में, जहां जहां पर भी पानी की किल्लत है। आपका ये कुलगाम माशाल्लाह, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की है। मगर जब हम ही देखते हैं इन्हीं नदी नालों को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ हमारा ही है। अगर मेरे यहाँ उस्ताद मोहतरम है, हालांकि उस्ताद होता है वो किसी का भी है, अगर ये आज से 30 साल 20 साल पीछे नजर डालेंगे, जो यहाँ आपका नजदीकी दरिया होगा, ये गांव वहां नहाता होगा, वो पानी पिया जाता होगा, उसमें कपड़े धोए जाते होंगे, उसको साफ रखने के लिए हिदायतें दी जाती होगी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, हम अगर घर में मकान बनाते हैं, आर्किटेक्ट को हम पहले बोलते हैं बाथरूम पाइप कपड़े ये पहला काम होता है हमारा, जो अफसोस की बात। जरूरी है कि आपके घर में अगर आपके घर वाले कोई कूड़ा करकट सड़कों पे, आपने देखा होगा ये जो सड़कें हैं ना हमारी, आपका टूरिस्ट प्लेस है यहाँ से हैदराबाद, तो गोबर रखना वहाँ पे, गंदगी पॉलिथीन वो डालना वहाँ पे, क्या है ये, क्यों हम डालते हैं सड़कों पे? इनको देखने के लिए जो लोग आते हैं वो क्या कहते होंगे? इसका एहसास हमें होना चाहिए। हम हर कोई बुरी चीज, गंदी चीज या तो नदी नालों के किनारों पे डालते हैं या हम सड़कों पे डालते हैं। उसकी वजह से जहर आलूदा पानी बन जाता है जो हम पीते हैं। हमें एहसास नहीं होता, हम दवाइयाँ खाते हैं, बालों पे इसका असर होता है, स्टमक पे इसका असर होता है, बॉडी पे इसका असर होता है। हर एक बीमारी का जो जड़ है वो यही गंदा पानी है। अपने घरों में, घर जो आपके बुजुर्ग हैं उनसे कहें, क्योंकि उनको लगता है कि बेटा ये डस्टबिन बाहर फेंक गया है। बाहर कहाँ फेंकेंगे? बाहर किसी का घर है, कोचा है, गली है, सड़क है, नदी है, नाला है, कहाँ डालेंगे? एहसास है ना, सारी चीजें हमें आती है। हम तो बहुत तरक्की याफ्ता जमाने में रहते हैं। हम इस दौर के लोग हैं जहाँ हम मतलब जो सोच में कभी अगर आज किसी जिसको 10, 20, 30 साल 40 साल मरे हुए होंगे, इंतकाल जिसने किया, अगर आज उसको यहाँ लाए हो तो पहचान ही नहीं पाएंगे ये कोई दुनिया।